ये स्टार्ट हो गई जी। हाँ जी। वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वालेकुम सलाम सर। आई होप वालेकुम you सलाम सर। most welcome all of you. I hope you are enjoying good health and you are collecting the blessings of Ramzan at this time and 8th I think today is 8th Ramzan. Okay, we were discussing last week comedy of manners. We have read two dramas, The Importance of Being Honest and The Way of the World. Last lecture we have discussed characters of the drama The Way of the World. Okay, can you hear me clearly? आवाज clear आ रही है ना? यस सर। Okay. यस सर। यस सर क्लियर है। ओके। आज मैंने आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड टू यू नोट्स जो कि पहले ही एक बच्चे ने मुझे शेयर किए थे, द वे ऑफ द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव रिस्टोरेशन कॉमेडी। तो ये रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है ना, ये उसकी रिप्रेजेंटेटिव कॉमेडी है, यही हम आज रीड करेंगे। अगर आपके पास है नोट्स तो काइंडली इसको स्क्रीन को शेयर करना चाहे तो कर दें ताकि हम इसको रीड करें। और जो बातें एम्बिग्यूटी है, इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो इसलिए मैं मुझे लगता है वो रोज़े की वजह से ज़रा थके थके नढाल नढाल होते हैं, लेकिन अबू बकर के सॉरी शहजाद की एक बात ने तो मुझे अलार्मिंगली हिला के रख दिया कि ऑनलाइन लेक्चर की समझ ही नहीं आती। ओए ओए ओए, ये तो इट मीन्स हम तो ऐसे ही बस इकट्ठे हुए फिर। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी कोई सुनता है या नहीं, बस ऐसे ही वो हिस्ट्री का हिस्सा बनते जाते हैं? सर सुनते हैं। तो नवेश देखें आपके पास ये आया होगा लेक्चर, तो अगर आप इसे स्क्रीन शेयर करें। ये जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव रेस्टोरेशन कॉमेडी, टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। विलियम कॉन्ग्रीव, उसके बाद जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लो जी, करम मोस्ट वेलकम। करम शहजाद साहब की तशरीफ ला चुके हैं। Okay, let me read a few lines of this, then we will discuss it. The Way of the World at Representative Restoration Committee. William Congreve's play, The Way of the World, is the best and brilliant example of restoration comedy of manners. Comedy of manners is related to human behaviors. The comedy arises not because of the person lacks certain manner, but the norms of social behaves. हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती है। सोशल बिहेवियर की एक तरह से कॉमेडी होती है। इट लाइज इन इट लाइज इन incongruous behavior and nature. This gives rise to gallant pop, drag, and wit. So the humor and wit become important. The play The Way of the World by William Congreve represents the real picture of contemporary society of this time. It is a fine flower of restoration literature, comedy of manners. The entire play is set in London, and this urban setting keeps a special importance. Restoration comedy does not represent every strata of people. It basically represents metropolitan aristocratic society in this period.
country people were ridiculed for the lack of sophistication. तो एक बात जो है जो इसमें पैराग्राफ में नोट करने वाली बात ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है रेस्टोरेशन पीरियड की, और विलियम कॉन्ग्री ने जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का टॉपिक है वो सोफिस्टिकेटेड पीपल है। एक बात अर्बन लाइफ है, वो भी मेट्रोपॉलिटन अर्बन लाइफ, किसी बड़े शहर की अर्बन लाइफ है, ना कि रूरल लाइफ है। तो उनके बिहेवियर को यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास डिस्कस नहीं हुई, जो सोफिस्टिकेटेड क्लासेस हैं उसके बिहेवियर को डिस्कस किया गया है, उसके बिहेवियर को इन इन ड्रामाज में डिस्कस किया गया है। As with all comedies of this type, I'm sorry, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, when the play was first performed in 1700, it was not a huge success, but later on, it was realized that the play is a classic example of comedy of manners and Congreve's masterpiece. The title of the play is rightly suitable. First, it is inspired by the then social period during which the play was originally performed. Secondly, as a comedy of manners, it makes fun of human follies and silly social behavior. The play transcends the time and remains a timeless comedy. In simple words, we can say this drama was firstly performed in 1700. Okay, at first this drama was not a successful drama, but with the passage of time, it was very successful drama. Okay, so make fun of follies and silly social behavior of sophisticated class. As with all comedies of this type, the play is full of many sexual and vulgar witticism scenes. The act first begins in the chocolate house where many people come to enjoy. Similarly, Act Two begins in St. James Park. The park suggests something as freedom. This is a public place and where basically fashionable people used to go to exchange their heart and to be free. Act Third. Two begins in Lady Wishford's house, but the very scene is in the toilet. Remaining inside the toilet, Lady Wishford is talking to Peg in serious matters. It clearly shows that how restoration people take the serious things lightly. In Act 4, Lady Wishford and Forbel are talking the arrival of Sir Rowland. Lady Wishford orders to Forbel to arrange the things in order, and she also asks the dancer and musician if he, Sir Rowland, wants to entertain. It is the showy nature of the Restoration period, people. Because people Lady Wishford Lady Wishford is very much concerned on how to perceive and impress men in his first visit. As a result, she talks how to sit, how to walk, how to talk in front of him. She says, I'll walk from the door, open his entrance. And how do I look? These some events clearly show that how the Restoration people are very pedantic in their fashion and outer appearances. In this paragraph, we can judge the situation that Committee of Manners as the way of the world shows that the picture of
that era. The people of that era were very interested in sophisticated things. Okay, तो आपको बताया गया है ज़ाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे और बहुत ही सीरियस थिंग्स को वो बड़े लाइटली करते थे और बड़ी लाइटली थिंग्स को बहुत ही सीरियसली करते थे। तो एग्जीबिशन के कायल थे। तो ये इवेंट्स आपको बताते हैं कि किस किस्म का उनका बिहेवियर था। इन द सेम वे another scene Millamant talks with her lover Mirabel that she does not like to be familiar to or found. She rejects to go any path not she plays together even after the marriage, and she wants to be like unmarried one. Likewise, she wants liberty to write letters, to receive letters, to talk with a lover, to have dinner with him, and to bring him in her dressing room. Even her husband must knock the door before entering the room if her lover is inside the room. These are the general conditions she talks with Mirabel before getting married. This is what actually the restoration period was. तो इन्हीं कंडीशन से इन्हीं प्रेफरेंसेस से पता चलता है कि what type of period that was. Okay. In the play, male characters are pursuing women. Pursuing women, we can take the instance of Mirabel, Beetroot, Petulant, and Fennel, who seem adulterous and deceptive. It was because fashionable to court a young and beautiful woman in the contemporary society. ये उस वक़्त का फैशन था। In the play, everyone plots against everyone and deceives everyone. And the play begins, we know that Mirabel pretends to love Lady Wishford in order to be touched with Millamant, the single heir of the property. Mr. Fainall, the fortune hunts, is also committed to get Millamant's fortune at end. We find the characters in disguise and they do their best to be what they are not, to pretend to be what one is not in the way of the world. So the title itself suggests the manner of restoration urban aristocrats. तो notable बात ये है if you remember the summary or story of the all the play you can write each and everything about this. Okay. टॉपिक कोई भी हो अगर आपको स्टोरी और आपको करेक्टर्स अच्छे से आते हैं मालूम है तो जाहिर बात आप रिप्रेजेंटेशन पे लिख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट थीम्स पे लिख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट तो इनकी प्रेफरेंसेस और इनकी पॉलिस इनके जो हैं एक्टिविटीज़ वही बता देती हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स या उस दौर की हरकतें क्या थी। Next paragraph, restoration as a historical period was a time when England was an established colonial power in the world. It was a time of materialism and commerce, and the people of the period emphasized money, pleasure, and sex. Love and marriage were judged in terms of money. Artificiality and immorality were the defining features of the age. People looked towards relaxation and pleasure, and serious things mattered less to them. तो ये उस दौर की इकोनॉमिक कंडीशन बताई गई हैं और लोगों की प्रेफरेंसेस बताई गई हैं। By highlighting these things, the way of the world exposes the issues of money, love, sex, marriage, and in short, the behavior of the people of the time in the language of prose. आवाज तो सबको आ रही है ना? कोई बता हाँ,
थैंक यू। Yes, sir. हाँ, ये है ना कि आराम से यस कानों से सर आ लगी रही है। हुई। ओके, थैंक यू। सुन तो रहे हैं ना आप? जी जी इसको हम सर, सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आखिर आखिर में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। एक दफ़ा हम ये रीड कर लें, फिर थोड़ा सा ओवरऑल जो कुछ कुछ पल्ले पड़ा हुआ है वो समझ आ ही जाएगा। ओके, तो मैं विश ये जैसे आपका लैंडस्केप आ रहा है, ये वर्टिकली नहीं हो जाता इसकी स्क्रीन जो है वो, उसमें आके वो क्या कहते हैं, शटर में आके उसको अगर आप ऐसे करें। हाँ, वेरी गुड, ये हुई ना। हाँ, आप गुड, फैंटास्टिक, आप ठीक हो। वाई हाईलाइटिंग दीज थिंग्स पे हम आ चुके हैं कि हाँ, रेस्टोरेशन है। वाई हाईलाइटिंग रेस्टोरेशन वाला पैराग्राफ है जो okay. By highlighting these things, the way of the world exposes the issues of money, love, sex, marriage, and in short, the behavior of the people of the time in the language of cross. The rags, pops, gallants, and wits are the primary types dealt with in language, with is outwardly brilliant but lacking philosophical and emotional or psychological depth. This makes the play a typical restoration comedy of manners. The mode implied is satiric and ironic, which befits the social reality of the time. In the Restoration period, there was a moneyed class with leisure, pursuit of sexual pleasure, and money was the main concern of the people. Marriage was not just like as an institution for procreation or for providing stability to social life. It was seen as a mercenary venture. Where is that? It was seen as a mercenary venture. The way of the world contains characters who resort to sexual innuendos and vulgar jokes. Humor and wit are the key ingredients of this play. The characters represent many aspects of the society of the time and the aristocracy in particular. Mirabelle is a wit and a manipulator. He uses language in a very witty manner. The clever use of language makes his speech brilliant on the surface, but it has no psychological depth underneath. He pretends to love Lady Wishford so that he can move closer to Millamant. His eyes are on her fortune. Love and marriage are guided by the desire for material gain. Fainal, the villain of the play, is intent on playing his hand on Lady Wishford's fortune. He marries Mrs. Fainal not because his love for her is true. Where is that? Okay. He marries Mrs. Fainal not because his love for her is true, but because he takes it as a mercenary venture. Mercenary venture mean economic benefits के लिए. Millamant is a typical restoration coquette, and Mirabelle, a representative view. Petulant and Whitwood are a typical fops of restoration drama. They are more concerned with dress and appearance than with anything else. Use of wit is a remarkable aspect of restoration comedy. The characters use language in a very tricky and clever way. Use of repartee basically refers to quick replies while the reporter
is related to short return in speech. Repartee is a term over here. It's a quick response. जब आप कोई बात करें और आपका फौरन prompt response है वो repartee. It was a sharp weapon in the late 17th century to be used for the amusement of those intelligent enough to follow the experiment. While talking to Mrs. Fainall, Mirabelle provides an example of it as he comments on early 18th century marriage. He says, "You should have just so much disgust for your husband as may be sufficient to make you relish your lover." The whole plot of the play revolves around the issues of adultery, marriage, fortune, and as we see the plot unfold, the characters reveal themselves through their pursuits and behavior. The way they behave makes laughter inevitable. Through this, Congreve is satirizing the behavior of people then in English society, It is a typical restoration comedy of manners. Since the age was capable of feeling the intensity of tragic emotions, witty and light hatred, dramatic stuff worked much better with them. The shallowness and vulgarity of the time were convincingly brought to life. The play is written in prose to depict the age of commerce and money. The language of money is the number and the prose, not the poetry. The play does not end with everyone happy, but Mirabelle and Willamette possesses the advantage and look forward to marriage. Finally, all deception is revealed, the proper lovers are joined, and the complications are smoothed out. As the play carefully examines the relationships between the sexes and the impediments the sophisticated society throws between them, the play transcends its age and becomes a timeless comedy, as it embodies the major features of the Restoration Committee of Manners. It is a representative play of the age. It is a brilliant comedy of manners by holding up to ridicule the foibles and follies of the age. It shows ways to show social reform, which is what a comedy basically does. So this was an article related to the topic. I mean, the way of the world is the way of the world is the representative comedy of the era. तो इसमें वही बातें ऑलरेडी डिस्कस हुई हैं जो ओवरऑल कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हुई होती हैं। इसके आपने करेक्टर्स जो हैं ऑलरेडी आपको याद है, मीराबेल, मिलामेंट, फेनल, मिसेस फेनल, विश्व। कोई बताना चाहेगा? मुझे करेक्टर्स के नेम बताना चाहें? या मुझे ये बता दें हु वाज मिलामेंट? कोई बताना चाहेगा? Son, मिला yes. niece of Lady Fishpot and Mirabelle's lover. Okay. Something more about Milament's nature. Was she beautiful? Was she honest? Was she, yeah, and was she a representative of that era? वो भी उन्हीं जैसी थी जैसे वो थे, representative of that era थी. I mean, lover of money थी. Okay. Milament. बताना चाहेगा कोई? Yes, sir, she was like them. Even उसकी conditions भी थी कि अगर उसका हस्बैंड है वो शादी के बाद भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगी और उसका हस्बैंड को ये होगा कि परमिशन लेके वो एंटर हो अगर वो अपने लवर के साथ है. Okay, you wanna say that she was the representative of that society. Um,
with the evidence of this thing as she dialogues to Mirabel when he proposes her. तो जो उसने उसके लिए शराइत या कंडीशंस रखी थी उससे उसकी इनर का पता चलता है. ओके. एक है लेडी विशफर्ड. कौन बताना चाहेगा हु वाज लेडी विशफर्ड? एक आशिक रहमान है, आशिक रहमान है. आशिक इज ओवर हियर. इज ही प्रेजेंट? क्या आशिक साहब मेरी आवाज को सुन रहे हैं? अजीरा ने तो क्लास छोड़ दी. टोटल कितने हैं इस वक्त हमारे? मेरा ख्याल है 1 2 3 थोड़े से 23 है. तो हबीबा इश्तियाक सुन रही हूँ अगर? हिरा जावेद. करम शहजाद. ये तो सिर्फ मैं भी जाऊंगी, बाकी सब सोया हुआ है. ओके. सुमेरा लिया. ओके. यस सर. अच्छा बच्चे बताना चाहेंगे आपका कोई एक करेक्टर के बारे में आप बता दीजिए. द वे ऑफ द वर्ल्ड के किसी एक करेक्टर के बारे में बता दीजिए. इफ यू नो समथिंग अबाउट द करेक्टर्स. यस सर, एक मिनट मैं बस बताती हूँ. ओके ओके, आई एम वेटिंग योर रिस्पांस. तो इस वक्त है हमारे पास 23 स्टूडेंट्स है. करम या महविश आप इस वक्त स्क्रीन शॉट ले लीजिए. इस वक्त जो है ना मैक्सिमम अटेंडेंस है, आई नो. तो ये ले लें. Karam have shared all the screenshot all the students in your group, WhatsApp ओके group. ओके. हीरा जावेद, हबीबा और कौन है? सोबिया कौसर इज ओवर हियर. यस सर. सर मीराबेल के बारे में बताऊं? हाँ जी बताएं. मेरा लड़का था लड़की थी? सर ये मेल था. ओके. और ही हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और शार्पर टाइप था. और ये हीरो था स्टोरी का. लवर था मिलामेंट का, बल्कि वो लव करता था मिलामेंट को. और उसके पास हर चीज़ थी वो. लेकिन जो नहीं था वो ये था कि वो मिडिल क्लास था. उसके पास पर्सनैलिटी भी थी, हीरो भी था, लवर भी था अच्छा, लेकिन वो मिडिल क्लास था. उसके अंदर ये एक खामी थी. और उसकी क्वालिटीज ये थी. ही वाज अ विट्टी पर्सन, he was a sharper person, अट्रैक्टिव हीरो, he had लवर. an okay handsome personality and और प्लानर भी था you wanna say. बट लैकनेस ये थी कि he belonged to a middle class family. lack of money थी. ओके. और कोई मिस्टर फेनल के बारे में जो बताना चाहिए? क्योंकि ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है. मिस्टर फिनल को विलन कह सकते हैं स्टोरी का. यू कैन से द विलन ऑफ दिस. Yes, sir. हाँ जी. बताना चाहेंगे कि सर आप कुछ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट मिस्टर फेनल्स कैरेक्टर? सर वो इस स्टोरी का विलन था और उसके अलावा जो है ना वो अपनी जो उसकी वाइफ थी ना उस पर डिपेंडेंट था. यानी कि अगर हम इसके इकोनॉमी के लिहाज से बात करते हैं तो राइट सर. बिल्कुल ऐसा. तो वो इकोनॉमी के लिहाज से जो था वो अपनी बीवी पे डिपेंडेंट था. आई मीन मिसेस फेनल. ओके. तो विलन कह सकते हैं. तो बाकी उसमें भी वही ड्रॉबैक्स पाए जाते थे जो कि उस सोसाइटी में थे. लवर तो नहीं था बट वो लवर ऑफ मनी था, लवर ऑफ सोफिस्टिकेशन, लवर ऑफ एग्जीबिशन था. ओके. तो और कौन बताएगा? मिस्ट्रेस ऑफ
मिसेस मिस्टर फेनल की एक मिस्ट्रेस थी, उसके बारे में कौन बताएगा उनमें से? खालिद फरीद है, खालिद फरीद इस वक्त मेरे पास शो हो रहे हैं, सुन रहे हैं खालिद फरीद। मारिया यूनुस, मारिया यूनुस, कैन यू हियर माय वॉइस? एक जावर महविश जावर है, समरा इलियास। यस सर। हाँ समरा, आप ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं पूछ रहा हूँ मिसेस फेनल की, मिस्टर फेनल की एक मिस्ट्रेस है, तो क्या नाम है और उसके कैरेक्टर को आप डिस्कस करना चाहेंगे? सर मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो मैं लगे सर ये जी मिसेस फेनल जो है लिसन टू मी शमाल, ये लेडी आपकी विशफोर्ड। जी सर। लिसन टू मी, आपकी वो जो है सिस्टर भी हैं इस वक्त क्लास में? मेरी सिस्टर नो सर, वो दूसरी शुमाइल है। अच्छा वो दूसरी शुमाइला, वो शुमाइला है, शुमाइला और अनीला, जी सर। वो भी इस वक्त क्लास में है? पता नहीं सर, मैं चेक नहीं किया। ओके अच्छा बताएं। सर ये मिसेस फेनल जो है लेडी विशफोर्ड की बेटी है और ये अनहैप्पी है अपने हस्बैंड के साथ, और ये एक विडो है शादी से पहले। जब इसकी शादी होती है फेनल से, तो इसका शादी से पहले का अफेयर भी होता है और जो कि शादी के बाद भी चलता रहता है। इसकी जो मदर है वो इसे रेज करती है कि वो मर्दों से नफरत करे, और ये बहुत क्लेवर है और जीनियस है। जी सर। विशफोर्ड उसे कहती है, ओके। जी सर। और ये सर अपने हस्बैंड को बर्दाश्त करती है क्योंकि ये मोहब्बत जो मीराबेल से करती होती है, और ये लॉयल है अपनी कजन मिलामेट से, और ये मिसेस मावुड की फ्रेंड है। मैंने असल में ये पूछा था कि मिस्टर फेनल की एक मिस्ट्रेस है, उसके बारे में क्या जानते हैं? आपने सर तो मिसेस के बारे में। आप, हाँ जी, आपने मिसेस फेनल के बारे में मुझे बताया। सर मैंने इसकी वाइफ के बारे में बता दिया। हम्म, सर ये जो मिसेस मावुड है ना, ये एंटागोनिस्ट है। आपका रोल है? नो सर। अच्छा वो इसीलिए आपकी वो आवाज आ रही थी खाने की ना। ओके गुड, एंजॉय सर मैं कुछ खा तो नहीं रही वैसे। डजंट मैटर, ओके। सर ये एंटागोनिस्ट है और ये अपने दोस्त के हस्बैंड के साथ अफेयर होता है इसका। ये ग्रीडी है। और दोस्त के हस्बैंड के साथ, मिस्टर फेनल के साथ, मिस्टर फेनल के साथ, ओके। हाँ ये दोस्त है क्योंकि ना हाँ उसकी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ मिसेस फेनल जो है इसकी फ्रेंड भी है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है इसकी जो है मिसेस मावुड की, ठीक है। जी सर। तो उसके साथ अफेयर है बट लव नहीं है, ऐसा ही है? जी ओके, बट शी सीक्रेटली जी लव्स सर। टू मीराबेल, ओके। अच्छा एक और करेक्टर है जिसे वो लेडी विशफोर्ड जो है वो मिलामेंट की शादी उससे करवाना चाहती है, उसका नाम क्या है? सर विलफुल विटवुड। विल्फुल वेटवुड। उसको क्या कितना डिस्कस किया है इसमें, वो क्या है, कहाँ से आता है? सर लंदन से आता है। लंदन से वो आया है और वो हाफ ब्रदर है विटवुड का, और लेडी विशफोर्ड उससे शादी करना चाहती है, जी ओके। सर। एक सबसे बड़ा जो इसमें सबसे मेन करेक्टर, जिस तरह मीराबेल एक बहुत बड़ा करेक्टर है, फेनल एक बहुत बड़ा करेक्टर है, इसी तरह लेडी विशफोर्ड जो है ना वो भी बहुत बड़ा करेक्टर है इसमें से, जी सर। ठीक है। आप में से कोई जो चाहता है कि वो अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सके मिस विशफोर्ड को? सर ये जो लेडी विशफोर्ड है, सबसे पहले तो इसके पास अथॉरिटी होती है मनी की, क्योंकि इसके पास अपनी भी वेल्थ होती है और अपनी बेटी की भी होती है। मिसेस और फेनल की जी भी है, जी, और इस मिलामेंट की भी है इसके पास। ओके। और एक तो ये अपनी बेटी को रेज करती है कि मर्दों से नफरत करे, और दूसरी तरफ वो खुद इतना तैयार होती है कि मर्दों को अट्रैक्ट कर सके। यानी कि वो जो है उस अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी जो है वो खुद अपनी बेटियों को या नौजवान लड़कियों को रोकती है कि आप मर्दों से ना मिलो, बट एट दिस एज
at this age, अगर although she has been old, so she is like to uh, talk to men and enjoy society. Okay. यस सर। एक और बात है, इसमें हमें कुछ प्लेसेस डिस्कस हुई हैं सेट वाइज, जैसे चॉकलेट हाउस है। जी ओके, सर। कोई बताना चाहेगा आप में से वॉलंटरीली कि कितनी प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस के नाम एज मैनी जो आपको ज़हन में हो, कितनी प्लेसेस? चॉकलेट हाउस है, पार्क है, कहाँ पे सीन हुआ है? सर एक्ट 1 में तो चॉकलेट हाउस है और एक्ट 2 में सेंट जेम्स पार्क की बात हुई है जहाँ पे सेंट सेंट जेम्स पार्क। ओके। सेंट जेम्स पार्क। और एक्ट 3 में लेडी विशफोर्ड के होम और एक लंदन जहाँ से विल्फुल आता है। सर विल्फुल बिल्कुल बिल्कुल जो बात है, सर ठीक। यही है And अभी sir, तो। the mall, हाँ four द हाँ मॉल। places. हाँ बिल्कुल, द मॉल है वहाँ जी पे। सर। द मॉल है, चॉकलेट हाउस है, एंड एंड वो सेंट जेम्स पार्क है। ओके, तो इसमें कोई कैलकुलेटेड मनी कुछ किसी तरह, जैसे अर्नेस्ट में था, बीइंग अर्नेस्ट में था, एक कैलकुलेटेड मनी थी, तो इसमें भी कोई कैलकुलेटेड मनी है जिसकी कोई यस गार्डियन? सर, 6,000 पाउंड लेडी विशवुड एंड मिलामेंट के मिला के बनते हैं। 3,000 जो थे वो मिलामेंट के थे आई गेस, और 3,000 लेडी विशवुड के थे या फिर उसकी बेटी के थे, मिसेस फैनल के शायद। ओके, तो इसमें टोटल एक्ट्स कितने हैं इस ड्रामा में? 5 एक्ट्स हैं, ठीक है। जी सर 5 एक्ट है। चलिए ठीक है, कल फिर जो है ना इससे रिलेटेड मैं कल के लेक्चर में आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा और एक और टॉपिक इसका डिस्कस करके इस ड्रामा को हम करते हैं कल फाइनलाइज। ओके, तो आपको पता है 3 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे मिड टर्म एग्जाम्स, और देखो क्या फाइनल होता है, ऑनलाइन होते हैं, फिजिकली ऑनलाइन होते हैं या प्योर ऑनलाइन होते हैं। तो उसमें सिलेबस आप लोगों ने ही रखना है, आपने मुझे बताना है कितना पेपर बनाना है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जस्ट डेफिनेशन रखनी है, उसमें एक ड्रामा द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रखना है, या द वे ऑफ द वर्ल्ड रखना है। एक ड्रामा जस्ट हमने मिड तक जो है ना इन्वॉल्व करना है। ओके, तो बाकी जो 3 ड्रामाज होंगे बचेंगे वो हम फाइनल में उसका हो जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? यस सर। इतना सिलेबस काफ़ी है कि एक ड्रामा जो है वो उसके एमसीक्यूज करीब आता होंगे। तो ड्रामा से मुराद उसका राइटर भी आ जाएगा ना, और ओवरऑल रेस्टोरेशन पीरियड तो है ही, रेस्टोरेशन पीरियड हो गया, कॉमेडी हो गया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया। तो एक ड्रामा जो आप सिलेक्ट करोगे तो कल आप डिसाइड कर लेना, तो फिर जो है हम उसी के ही मिड लेंगे। आवाज़ मेरी आ रही है क्या? यस सर सर। ओके, तो मेरा ख्याल है हमारी इस द वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में टॉपिक्स अभी कितने हुए हैं? ओवरऑल समरी हुई है एक, विलियम कॉन्ग्रीव की लाइफ हिस्ट्री या बायोग्राफी हुई है 2, एंड करेक्टराइजेशन हुई है 3, रिप्रेजेंटेटिव प्ले है ये 4। तो रिप्रेजेंटेटिव प्लेस में ही बहुत सारे जो आपने देखा ये तमाम इश्यूज और तमाम थीम्स भी डिस्कस हो जाते हैं इसमें, ऐसा ही है ना? यस सर। तो कल जो है इसके थीम्स को भी डिस्कस कर लेंगे, कौन से थीम्स रहते हैं, मैरिज है, लव है, सेक्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, मनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कल और डिस्कस कर लेंगे। और कोई बात आप पूछना चाहते हैं? आई थिंक एनफ फॉर टुडे, क्या ख्याल है? आज के सर लिए इतना। जी जी। सर लास्ट टाइम जब हमारी क्लास हुई थी तो आपने कहा था जो नोट्स पहले हम पढ़ रहे थे ना हाँ जी। एक्ट के बारे में ना,
समरी पढ़ रहे थे, उसमें स्ट्रक्चर और स्टाइल के बारे में बात हुई थी, तो वो आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको बता दें। आपने बताया था उसमें यूनिटी ऑफ टाइम का, प्लेस और एक्शन का, ये इसको थोड़ा सा। अच्छा हाँ, वो ये था, ये जो यूनिटी ऑफ टाइम या यूनिटी का फैक्टर है ना, ये यूनिटी का फैक्टर भी पिक्युलर टू, स्पेसिफिक टू एक ड्रामा राइटर है, ड्राइडन। क्या नाम है उसका? ड्राइडन। ये एलिमेंट भी सबसे पहले जो है ड्रामा हिस्ट्री में उसी ने पेश किया था। तो ये उसी एलिमेंट को इसने, विलियम कॉन्ग्रीव ने यूज किया है। तो ये एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट क्या है? बेसिकली ये यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, एंड यूनिटी ऑफ प्लेस है। ओके। तो ये हमने इन शॉर्ट किया था कि यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम में ये ड्रामा खत्म हो सकता है। तो क्रिटिक्स बताते हैं कि ये ड्रामा जो है ना 24 आवर्स की कहानी है। 5 प्लेस जो है ना, ये 24 आवर्स में डिपिक्ट हो सकते हैं और हुए भी हैं। जो 24 आवर्स में ये डिपिक्ट हुए हैं। आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। यस, आवाज आ यस रही सर। है। लेकिन बैकग्राउंड में शोर हो रहा होगा, मेरी मामा, मुझे लगता है वो गंदम शंदम करती है। ओके। अब आप बैकग्राउंड शोर तो नहीं हो रहा? नो सर। ओके। तो वो जो है ना, हाँ, तो यूनिटी ऑफ टाइम तो ये हो गया ना, एक खास स्पेसिफिक टाइम में ड्रामा खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि उसको प्रीवियस पिछली सदियों तक लेके जाए, पिछले साल तक लेके जाए, या लेटर ऑन या बाद वाले। वो यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस है, एक ही प्लेस में हो सकता है। ठीक है। प्लेस से मुराद ये नहीं कि एक ही घर में एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही जगह पे का मतलब होता है, मतलब लंदन है तो लंदन है, शहर है, एक ही शहर में। ठीक है। उसके कंट्री साइड हो सकते हैं, टाउन्स हो सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं। तो यूनिटी ऑफ एक्शन है, वो भी यूनिटी ऑफ एक्शन के बारे में क्या बताना है? सेम एक्शन है। सर यानी कि उसमें ओनली तो वन एक ही एक्शन है। एक्शन होता है। हाँ, कौशल की बात कर रहे हैं, प्लीज समझिए। सर मतलब उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन में ये है कि ओनली वन सेंट्रल स्टोरी और एक्शन होता दैट्स है इट। उसमें। ठीक है, उसमें बाय प्रोडक्ट स्टोरी नहीं चलती, जैसा कि एक स्टोरी के अंदर ही दूसरी स्टोरी शुरू हो गई, दूसरी स्टोरी से तीसरी, हीरो यस हीरोइन सर। के साथ गया, हीरोइन की आगे जो थी वो स्टोरी स्टार्ट हो गई। ऐसी बाय प्रोडक्ट्स इसमें कम होती हैं, होती नहीं है, बल्कि एक मेन स्टोरी होती है, उसी से रिलेटेड जो है ना एक्शन घूमता रहता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, इसके बाद शेक्सपियर की ड्रामा में यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस तो होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी स्टोरीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो यूनिटी ऑफ एक्शन में ये होता है कि स्टोरी को समझना बड़ा आसान होता है। एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटागनिस्ट है, और अराउंड अबाउट उसके करैक्टर हैं। आप एक ही प्लॉट के ऊपर खड़े रहते हैं। ये नहीं होता कि आप सेकंड प्लॉट की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे ड्रामाज, बहुत सारी मूवीज ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें सेकंड प्लॉट होता है। आप मेन प्लॉट मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन दूसरे शहर में जाके जो है वो कहानी बदल जाती है। ठीक है। और एंड पे फिर उसको शुरू से जोड़ दिया जाता है। तो ये 2-3 प्लॉट होते हैं, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन में सिंगल प्लॉट, सिंगल एक्शन होता है, सिंगल प्लेस होता है, सिंगल टाइम होता है। ओके। यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये सारी बातें जो है ना हमने स्पेशल विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में पढ़ी। चलें जी, ठीक है। सी यू नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।